सदा निम्बवृक्षस्य मूलाधिवासत् सुधाष्ट्राभिनं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधियन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्. Greetings to all the Sai devotees. Welcome to this channel Sai Sai Bol. Today I'm going to do a general card reading from Sai Baba Oracle deck. Take the messages if it resonates with you, and do care to give a thumbs up if it at all resonates with you, if the reading resonates with you, and if not, then please put a big smile on your face and know that it wasn't meant for you this time. And yes, the reading, I'll try to keep it very simple, and the explanations, I'll try to keep it very simple, and I'll speak both in Hindi and English. Okay, so I have 3 piles here for this reading today. So for pile number 1, I have used this beautiful sphere of rainbow moonstone. मैंने एक रेनबो मूनस्टोन की स्फीयर रखे हुए हैं पाइल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करते हुए, और पाइल नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने एक टाइगर आई की टावर रखे हुए हैं. आई यूज्ड अ टाइगर आई पेंसिल और अ टाइगर आई टावर टू रिप्रेजेंट पाइल नंबर 2. एंड पाइल नंबर 3 को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने एक एमेथिस्ट की पिरामिड रखे हुए हैं. आई हैव यूज्ड अ एमेथिस्ट पिरामिड टू रिप्रेजेंट पाइल नंबर 3. सो पीपल, the beautiful souls out there, please take your time, calm your mind down, pause the video if necessary, and feel the resonance, which crystal is actually drawing your attention, and then be sure which pile you want to go with. Hello, pile number 1. So let me just shuffle the cards for you. Okay, pile number 1. So these are your cards. Let us find out what Baba has in store for you, what messages Baba has in store for you. Baba आपसे क्या कहना चाहते हैं ये जनरल रीडिंग के थ्रू. लेट्स फाइंड आउट. सो पाइल नंबर 1, आपकी पहली कार्ड है फेस रियलिटी. स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज. It's an illusion. I'll try to show you your card. This is your card. Okay, so this was the first card. I'll keep it. Let us see the entire scenario. Okay. Your second card says, do not doubt.
never doubt the power of Baba, have faith. Your third card says, do not judge. Free your mind of perceptions and judgments. This is your card. Your fourth card says compassion. Have compassion for those who are suffering and less fortunate than you. Help someone in need today. This is your card. Okay, so your fifth card says, okay, so you have a reverse card. Your fifth card is reverse. You can see this. ये उल्टा आया है, इसको रिवर्स कार्ड कहते हैं. टैरो में रिवर्स कार्ड को बहुत बार एक वार्निंग मानी जाती है, बट इन ऑरेकल्स रिवर्स कार्ड मीन्स यू नीड टू फोकस ऑन दिस पार्ट. you want to, you have to focus on this part. ये जो रिवर्स कार्ड ऑरेकल में मतलब हो जाती है कि ये जो मैसेज आपके लिए आ रही है, इस मैसेज पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस डालनी है. यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टुवर्ड्स द मैसेज. यू हैव टू पुट मोर फोकस ऑन द मैसेज. ओके, सो हियर इट गोस. आपकी फिफ्थ कार्ड जो कि रिवर्स आई है, वो कहती है चेंज. इन लाइफ नथिंग इज परमानेंट. कॉन्स्टेंट चेंज इज इनएविटेबल. सो दिस इज द मैसेज. Okay. Remember, pile number 1, fifth card was a reversed one. Change वाली जो card है pile number 1, वो reverse आया था, so that actually needs more attention from you. Okay. The sixth card. The sixth card says death. Death is inevitable. Only a guru can alter your destiny if he wishes. Okay, so this is your message. Okay. So pile number 1, जितना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप में से बहुत लोग हैं जो कि रियलिटी को देखते हुए भी, रियलिटी को जानते हुए भी आप लोग आँखों को बंद करके रख रहे हैं, और जो चीज़ आपके लिए हानिकारक है उसी को पाने की एक रट पकड़ के रखे हैं आप लोगों ने, ज़िद पकड़ के रखे हैं. सो पाइल नंबर 1, the cards clearly states that despite of knowing the reality, despite of knowing the truth, you are still running after a mirage. You are still not ready to accept that it's just an illusion. It has no result. It has no fruitful result to bear. It has no good ending to it. It can never put a smile on your face. But despite that, you are still running after that mirage. And यहाँ पे ये मैसेज बहुत क्लियर है कि आप लोग डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं. लाइक योर इनर वॉइस स्टॉप्स यू, योर इनर वॉइस गिव्स यू इंडिकेशन, योर इंट्यूशन your intuition tries to come in between. Your intuition tries to stop you where there is a danger for you. Your intuition, ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशन नहीं आती है. आपकी इंट्यूशन बीच में आती है. आपकी इंट्यूशन आपको रोकने की कोशिश करती है. आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको मैसेजेस देती है, बट फिर भी
आप लोग डाउट बहुत ज़्यादा करते हैं. सो द मैसेज फॉर यू इज़ पायल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ स्टॉप disbelieving, please stop this doubting habit, please stop judging yourself as well as others. आप लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं. Since you have these cards side by side, एक के बाद ही एक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे. do not doubt and do not judge. ये जो दो आपकी कैरेक्टरिस्टिक की जो पार्ट है, जो आपकी नेचर की पार्ट है, डाउट करना, जज करना, इस चीज़ को आप लोगों को रोकना ही होगा. इससे बाहर आपको आना ही होगा. इसके वजह से क्या हो रहा है, आपकी ये डाउट और जजिंग के वजह से जिस जगह पे आपको हाँ में हाँ होनी चाहिए, उस जगह पे आप डाउट करके उसको ना कर रहे हो. जिस जगह पे आपको ना कहनी चाहिए, उस जगह पे आप उसको भी, जो अच्छाई है उसको भी, जो चीज़ आपको रोक रही है, जो आपके लिए नेगेटिव है, उस तक पहुंचने के लिए जो चीज़, जो भी आप स्पिरिट्स बोलिए, बाबा बोलिए अगर आप साई डिवोटी है तो, या फिर आपके जो भी आपके वेल विशर्स है, अगर मतलब हमेशा भगवान सामने तो नहीं आते हैं ना बात करने के लिए, तो किसी ना किसी को ज़रिया बनाते हैं. कोई भी रिलेशन, कोई भी दोस्त, कोई भी इंट्यूशन, कोई भी फ्लैशेस, कोई भी इनर वॉइस आपको अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप उस चीज़ को जज करते हैं, उस चीज़ को डाउट करते हैं, एंड देन यू एंड अप मेसिंग अप विथ एवरीथिंग, एंड देन यू एंड अप गेटिंग योर सेल्फ इन टू ट्रबल. आप खुद को एक ऐसी जगह पे लेके चले जाते हैं जहाँ पे बाद में आप ही को भुगतान देनी पड़ती है. And the next card says compassion. Have compassion for those who are suffering and less fortunate than you. Help someone in need today. Pile number 1, आप बहुत ज़्यादा, आप इतना ज़्यादा खुद में उलझे हुए हैं, आप इतना ज़्यादा खुद ही पे क्या बोलूँ मैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं. इन्वेस्ट इन द सेंस, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ. आप इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, इतना ज़्यादा आप सेल्फ इन्वेस्टेड है कि आपको दूसरों की तकलीफ़ें दिखाई ही नहीं देती है. बहुत कम ऐसी मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको रियलाइज़ होती है कि आपके वजह से दूसरे दुखी हो रहे हैं, आपके वजह से दूसरों को कुछ तकलीफ़ या कष्ट हो रहे हैं, या फिर कोई आपके सामने अगर बहुत ही एक बुरी स्टेट में है, अगर कोई सफ़र कर रहा है, बी इट फिनेंशियली, बी इट फिज़िकली, बी इट मेंटली, बी इट इमोशनली, आपको सबसे पहले आप ही की पड़ी रहती है. द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड इज़, सबसे पहले मैं खुद का देख लूँ. अरे यार, सबका मैं संभालने जाऊँ तो मेरा कौन संभालेगा. सो फ्रॉम बाबा द मैसेज फॉर यू इज़ प्लीज़ बी कंपैशनेट. और कंपैशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ खुद की जो रेस है, यानी कि ह्यूमन रेस, सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, कोई भी जीव जिसको मदद की ज़रूरत है, बिना सोचे समझे आप अपने खुद की तकलीफ़ों को साइड में रखते हुए सबसे पहले जाके उनकी मदद कीजिए. हमेशा, मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि मदद का नाम सुन के हम लोग सोचते रहे, यार खर्चा हो जाएगा, पैसा देना पड़ेगा. हमेशा पैसा ही नहीं होता है. किसी को मदद करने के लिए हमेशा पैसे की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप एक इमोशनल हेल्प भी बन सकते हो. हाँ, डेफिनेटली फिनेंस तो है, इट्स अ पार्ट. पैसे की ज़रूरत तो पड़ती है. अगर कोई बीमार है तो दवाई खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए ही होगा. बट अगर कोई बीमार है और उनको हॉस्पिटल तक लेके जाने के लिए कोई नहीं है, उस जगह पे भी आप आ सकते हो. सो डू नॉट जस्ट काउंट हेल्प, डू नॉट जस्ट मिक्स हेल्प विथ मनी. कि हेल्प करने की मतलब ही हो जाता है कि मुझे पैसा डालना पड़ेगा. और अगर पैसा डालना भी पड़ता है ना, तो बेझिझक, अगर स्पेशली अगर आप साई डिवोटी हो और अगर आप मेरे चैनल पे हो, यहाँ पे ये मैसेजेस आप सुन रहे हो, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आप साई डिवोटी है, इसीलिए आप मेरे चैनल पे है. और अगर आप बाबा के डिवोटी हो तो कंपैशन के बिना तो हम लोगों के लिए जगह ही नहीं होगी बाबा के चरणों में, है ना. तो आगे से प्लीज़ कंपैशन रखना स्टार्ट कीजिए. जिसको भी मदद की ज़रूरत होती है, खुद को बाबा के ऊपर सरेंडर कर दीजिए. अगर आप बाबा से प्यार करते हैं, अगर बाबा पे आप भरोसा करते हैं, तो ऐसा कैसा प्यार हो गया मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, जहाँ पे आप सरेंडर नहीं कर पाते हैं. अगर बाबा पे इतना सरेंडर है, बाबा पे इतना भरोसा है, तो इतना ज़्यादा आप सेल्फ इन्वेस्टेड क्यों हैं? आप खुद को लेके ही इतना टेंस्ड क्यों रहते हैं? आप खुद को लेके ही इतना चिंतित क्यों रहते हैं कि आपको दूसरों के लिए कोई टाइम ही नहीं होता है? दूसरों की तकलीफ़ में शामिल होने को आपको झिझक आती है, दूसरों की मदद करने में आप 10 बार सोचते हैं, या फिर आप वो टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं. सो अगले बार से प्लीज़ ट्राई टू बी compassionate with the people or with the animals or with any living being who
needs or require your help and attention. And most importantly, do not doubt and do not judge. डाउट और जज करना बंद कीजिए, और ये दूसरों के लिए ही नहीं, डू नॉट जज और डू नॉट डाउट खुद के साथ भी नहीं। आप खुद को भी बहुत जगह पे बहुत बार डाउट कर लेते हैं, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा उलझ के रहना पड़ता है। आप खुद को भी बहुत ज़्यादा जज कर लेते हैं। तो फ्री योर माइंड फ्रॉम दिस ट्रैप ऑफ डाउट एंड जजमेंट आई मीन। उसके बाद देखिए, और जैसे कि आप सरेंडर करना स्टार्ट कर दोगे, आपके अंदर जजमेंट और डाउटफुलनेस है, इसीलिए आप सरेंडर नहीं कर पाते हो। आप बाबा से प्रेम तो कर लेते हो, बाबा से प्यार तो कर लेते हो, लेकिन आप पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाते हैं। नाउ इट्स द टाइम टू सरेंडर। ओके, सो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड्स। आपकी फिफ्थ कार्ड जो कि रिवर्स आया था, आई रिपीट, द फिफ्थ कार्ड दैट वाज अ रिवर्स कार्ड, पाइल नंबर 1। तो आपकी जो रिवर्स कार्ड है, यानी कि जिस मैसेज पे आपको बहुत ज़्यादा जोर डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा फोकस डालनी चाहिए, दैट स्टेट्स चेंज इन लाइफ, नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल। सो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है, जो कि ये जो रिजिडनेस यहाँ पे दिख रही है, आप रियलिटी को मानना नहीं चाहते, आप कोई भी अच्छी चीज़ आपको कहा जाए तो आप उसको डाउट करते हो, आप जज करते हो, भले ही आपके भी दिमाग में, आपके भी इंट्यूशन अगर आपको कह रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, तो भी आप उसको जज करते हो। और जहाँ पे नहीं करना है, मतलब आप रॉन्ग जजमेंट करते हो। सबसे बड़ी बात है, जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं उनको आप गलत समझते हो, जो लोग आपको एक्चुअली डैमेज कॉज कर रहे हैं उनको आप सही मान लेते हो। सो ये डाउट और जजमेंट बहुत ही गलत रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे जो है कंपैशन, ये जो रिजिडनेस एक है, आप खुद में आप जो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद को लेकर ही इतना उलझे हुए हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण है दिस चेंज। आपको चेंज एक्सेप्टेबल नहीं है, आप चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सब कुछ चलते आया है, जिस तरीके से आपको सब कुछ चाहिए है, वैसा ही चलते रहना चाहिए और वैसा ही होना चाहिए, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से पाइल नंबर 1, इफ यू आर still believing into the wrong perception, or if you're carrying that wrong perception with you, that whatever you want you can get it that way, with all these manifestation and these sort of terms like affirmation and manifestation will get you what you want, and if it is not meant for your highest good, no, pile number 1, you're not going to get that. आजकल हम सभी ने ये मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन के बारे में जान रखे हैं, सभी को पता है कि दैट्स द ईजीएस्ट वे एंड द सेफेस्ट वे टू गेट थिंग्स दैट वी वांट। मतलब यूनिवर्स को हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन, बट अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट मेंट फॉर योर हाईएस्ट गुड, पाइल नंबर 1, आपको वो नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो बहुत ही कम क्षण के लिए वो चीज़ आपको मिलने वाली है, क्योंकि आपने अगर मैनिफेस्ट किया है, आपने अगर आपकी एनर्जी को यूज़ की है, तो देयर इज़ ऑलवेज अ एक्शन एंड रिएक्शन फॉर्मूला। सो अगर आपने वो एक्शन ली है जहाँ पे आपने मैनिफेस्ट किए हैं, जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किए हैं आपकी एनर्जी को, आपने यूनिवर्स से कम्युनिकेट किए हैं, तो इन ऑनर ऑफ दैट शायद आपको कुछ दिनों के लिए, कुछ पलों के लिए आपको वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, तो इट वोंट बी अ परमानेंट गेन फॉर यू, हमेशा के लिए वो नहीं रहेगा। चेंज इज़ इनएविटेबल, चेंज होना ही है, बदलाव आएगा ही। एंड पाइल नंबर 1 ऑन दैट नोट, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टेंटली होती है, अगर कोई भी चीज़ कभी नहीं बदलती, तो वो बदलाव है। एक बदलाव ही है जो कभी नहीं बदलती, बदलाव आना ही आना है। दिन के बाद रात आएगी ही, रात के बाद दिन आनी ही है, इसको हम लोग नहीं रोक सकते। तो प्लीज़ चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। इस जगह को आप कर लेते हैं, चेंज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें आपकी 50% में आ जाएगी, और बाकी जो 50% है उसमें एक्शन की ज़रूरत है। आप लोगों को भी वो एक्शन लेनी पड़ेगी, वो प्रण लेना पड़ेगा कि नहीं, आगे से हम लोग ये जजमेंट और डाउट से, मतलब ये जो संदेह है, संदेह और जजमेंट से, जजमेंट की हिंदी मुझको अभी याद नहीं आ रही है,
सो जजमेंट आप लोग सभी समझते हैं, तो जजमेंट और डाउट से मेरी माइंड को फ्री करनी है मुझको, ये एक्शन आपको लेना ही होगा। एंड स्पेशली कॉम्पैशन, आई ब्रिंग दिस कार्ड इन फ्रंट, स्पेशली कॉम्पैशन करना ही है। मदद करो तो मदद मिलेगी ना। बाबा ने क्या सिखाया है, अगर आप बाबा के डिवोटी हो तो मुझे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो द लास्ट कार्ड सेज डेथ। जी घबराइएगा मत प्लीज़, डेथ का मतलब हमेशा मौत नहीं होती है। डेथ मीन्स अ न्यू बिगिनिंग। जी हाँ, डेथ, बहुत लोग, आप लोग शायद पाइल नंबर 1, आप लोगों में से ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी अपने को खोया है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, या जो आपके बहुत करीब रह चुके हैं, जो आपसे जुड़े हुए थे। अगर आपने किसी को खोया है अभी अभी, तो मान के चलिए इट्स फॉर अ गुड रीज़न। हाँ, मतलब मैं जितनी इजीली आपसे कह रही हूँ, आपके लिए इतना इजी नहीं रहेगा। द वॉइड विल ऑलवेज बी देयर, बट वट एवर हैपन हैज़ हैपन फॉर अ गुड कॉज। जो भी हुआ है वो अच्छाई के लिए ही हुआ है, बिकॉज डेथ ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ न्यू बिगिनिंग। चेंज और डेथ दोनों साथ साथ आए हैं, आप लोगों को मैं एक बार दिखाना चाहूँगी। चेंज और डेथ दोनों आसपास में हैं, तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा इशू चेंज और डेथ से रिलेटेड है, यानी कि बदलाव आपको नहीं चाहिए है। आप लोग कतराते हैं, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़, रिश्ता हो, जॉब हो, कोई भी चीज़, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते हैं। जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, बदलाव की ज़रूरत क्यों है, ये आप लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मेरे भाई बहन दोस्त, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों के हाथ में नहीं रहती है, बदलाव आना ही आना है। और बेहतर यही होगा कि बदलाव को अपना के, जो बदलाव है, बदलाव को अपना के हम लोग अगर आगे बढ़ सके तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हमसे जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। सो pile number 1, this is always wise advice to, or wise decision to accept the change and move on with it. So death people, this is the death card, जिन्होंने भी किसी को खोया है, know that he or she is in a safe place। और ये ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी न्यू बिगिनिंग, उनकी जो नई जर्नी है वो शुरू होना बहुत ज़रूरी था इस लाइफ टाइम के लिए। उनकी जो पर्पस थी वो फुलफिल हो चुका था। वी ऑल कम हेयर विद अ पर्पस, राइट। तो वो चाहे वो एक इंसान थे, एक जानवर था, चिड़िया थी, या जो भी, कोई भी लिविंग बीइंग वो रहे हैं, कोई भी रूप में वो आए थे इस दुनिया में, उनकी जो पर्पस था वो सर्व हो चुकी है। एंड नाउ ही और शी इज़ कम्प्लीटली रेडी फॉर द न्यू जर्नी और न्यू बिगिनिंग। सो जो निकल गए हैं उनको मुस्कुराते हुए अलविदा कहिए। और जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी सिर्फ शरीर गई है, द सोल इज स्टिल देयर, तो सो यू कैन कम्युनिकेट विद द सोल। अगर आप ये मान सकते हो कि आत्मा नश्वर है, आत्मा की कभी भी मौत नहीं होती है, तो प्लीज़ आप लोग उनकी डेथ को मोर्न मत कीजिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट इट and be happy that he or she is into a transformation for a better place, ठीक है। एंड जिनके साथ ऐसा कोई सिचुएशन नहीं हुई है, जिन्होंने अपनों को नहीं खोया है, दुआ करती हूँ कि जो लोग भी ये सुन रहे हैं किसी ने ना खोई हो, बट जिन्होंने नहीं खोया है सच में, उनके लिए ये डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करती है एक बहुत बड़ी चेंज की, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि शायद बहुतों को आप में से, या जो लोग ये कार्ड रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी ये पता भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अप्रोचिंग, और एक चेंज, बहुत बड़ी चेंज आने वाली है, जो आप लोग एक्सेप्ट नहीं करके ले रहे हैं। सो इट्स टाइम। सो द मैसेज फ्रॉम बाबा इज एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव ऑन विद इट। एंड प्लीज़ टू रिमेंबर दिस कंपैशन पार्ट, जो जिनको भी मदद की ज़रूरत है कीजिए, एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम जजमेंट एंड डाउट। ऑल्सो फेस द रियलिटी। सो फेस द रियलिटी, वंस अगेन द फर्स्ट कार्ड, दिस फेस द रियलिटी, चेंज एंड डेथ। ये तीनों कार्ड बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फेस द रियलिटी, चेंज एंड डेथ। सो योर रियलिटी इज द चेंज, दिस न्यू बिगिनिंग, द चेंज एंड द न्यू बिगिनिंग इज योर रियलिटी। सो डोंट रन अवे फ्रॉम इट, फेस इट boldly, face it with an acceptance, and things will be all fine. That was all for you, pile number 1. अगर आप लोग resonate कर पाए हैं, if you're able to resonate with the reading, then please do not hesitate to give me a thumbs up on this video.
एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल इज़ अ न्यू बॉर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दिस आउट दैट दिस इज़ अ न्यू बॉर्न चैनल. माय मेन अकाउंट और माय मेन चैनल इज़ ज़ीनिया द सॉलिटरी विच. आप में से बहुत लोग हैं जो मुझको मेरी मेन जो चैनल है उसमें शायद फॉलो करते होंगे, जहाँ पे मैं पहले हर वीक बाबा की रीडिंग करती थी. ये चैनल मैंने बाबा को डेडिकेट किए हैं. साई साई बोल इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू बाबा. तो आगे से मेरी जितनी भी रीडिंग्स रहेगी वो इसी चैनल पे रहेगी, साई साई बोल में. सो अगर आप लोग मुझे पहले से जानते हैं तब तो मुझे पता है आप लोग बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए और कमेंट किए नहीं जाओगे. और अगर आप नए हो, अगर आप मुझसे पहले नहीं मिले, मेरे चैनल पे आपने सब्सक्राइब पहले नहीं किए, जो मेरी मेन चैनल है जो कि ज़ीनिया द सॉलिटरी विच इज़ माई मेन चैनल, जहाँ पे मैं और भी बाकी जो भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बातें हैं वो बताती हूँ, जो भी स्पेल्स है वो बताती हूँ, रिचुअल्स के लिए बताती हूँ. और वहीं पे एक सेक्शन मैंने बाबा के लिए रखा था जहाँ पे मैंने करीब करीब 5-6 महीने तक या उससे भी ज़्यादा शायद मैंने हर वीक बाबा के लिए रीडिंग की है. और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा. मैं हर वीक आती रहूँगी बाबा की जनरल रीडिंग लेकर. सो दैट वाज ऑल फॉर यू. पाइल नंबर 1, विश यू ऑल द बेस्ट. ओम साई राम. Hello, pile number 2. Okay, so let me just arrange your cards. Okay, so pile number 2, your first card says, ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. This is your card. Okay. The second card says, the miracle. Miracles happen. Look out for the miracle in your life. Okay. So your third card says, soul journey. You will be shown the path, but you have to walk on it all alone. Your fourth card says compassion. Okay, pile number 2. This card came again. Compassion. Have compassion for those who are suffering and less fortunate than you. Help someone in need today. The compassion card बार बार आ रही है. Pile number 1, they also had this compassion card. Compassion की बड़ी कमी है आजकल मतलब. Your fifth card says repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. Okay. The last card, pile number 2, says faith. Have faith, Shraddha, above all else. Oops, okay. So, pile number 2.
सबसे बड़ी बात तो है भरोसा डगमगा रही है, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ऐसी मोड़ पे है आप लाइफ के जहाँ पे आपकी भरोसा डगमगा रही है। आपको ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद, इतनी श्रद्धा रखने के बावजूद अगर जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ वो मुझे ना मिले, तो फिर इसका क्या मतलब है। ऑन दैट नोट मैं कहना चाहूँगी कि कभी भी श्रद्धा ऐसे ही नहीं जाती है। श्रद्धा, भरोसा, विश्वास जब हम अपने जो डेटीज़ है, यानी कि यहाँ पे तो बाबा की ही बात होगी क्योंकि हम लोग बाबा के डिवोटीज़ हैं, तो जब हम बाबा से जुड़ते या ये जो परमात्मा से आत्मा की जो जुड़ाव है, अगर परमात्मा पे आत्मा ने भरोसा किया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो ऐसे ही मतलब बिना सपोर्ट के वो ऐसे ही मतलब बीच भंवर में उनको छोड़ दिया जाएगा। ये तो इम्पॉसिबल है। बस हाँ, फ़र्क इतना है कि हम लोग जिस टाइम पे जो चीज़ चाहते हैं शायद वो टाइम पे हमको वो चीज़ ना मिले, क्योंकि ये कुछ ऐसा है। पाइल नंबर 2, this is something like, you know, when we were kids, we used to ask for too many things from our parents, but they used to give us what was needful, what was actually required. So कुछ ऐसा ही है। जब हम लोग बच्चे होते हैं, शैशव में हम लोग अपने माता पिता से बहुत सारी मांगे रखते हैं उनके सामने, बट हम लोग को दी उतना ही जाती है जो हमारे लिए ज़रूरतमंद है, जो हमको ज़रूरत है। सो कुछ ऐसा ही है। जब हम लोग बाबा से प्रे करते हैं, ही इज़ ऑल्सो अ गार्डियन, राइट। तो जब हम लोग बाबा से प्रे करते हैं, हम लोग ये उम्मीद लेके जाते हैं कि बाबा हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी, क्योंकि बाबा तो है ही इतने दिलदार, वो सब की सब बात मानते हैं, सब बात सुनते हैं। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जो हम लोग मांग रखते हैं, जो हम लोग उम्मीद करते हैं, वो तभी के तभी हमको नहीं मिलती है। वो इसीलिए है क्योंकि ही गिव्स अस व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर अस, नॉट व्हाट वी वांट, व्हाट वी डिज़ायर फॉर। क्योंकि हमेशा जो हम लोग चाहते हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। अगर एक बच्चा आपसे, अगर आप खुद पेरेंट है और बच्चा आपको आके अगर चॉकलेट की मांग करे और आपको पता है उनकी दांतों में सड़न हो रही है, क्या आप उनको वो चॉकलेट दोगे? नहीं दोगे, राइट। बच्चे को वो चीज़ नहीं समझ में आएगी। बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरे फ्रेंड के मम्मी पापा तो उनको चॉकलेट्स देते हैं, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा ने क्यों चॉकलेट नहीं दिया। उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन नहीं होती है कि अरे मेरी दांतों में ऑलरेडी माई टूथ आर गेटिंग डिकेड, तो मेरे दांतों में सड़न लग चुकी है, मुझे उसको पहले ठीक करना है, और चॉकलेट मैं खाऊंगा या खाऊंगे तो उससे मुझको और ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। वो बच्चे को नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली द सिमिलर वे हम लोग को नहीं दिखता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ख़राब है। हम तो बस रट लगा के जिद लगा के बैठ जाते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं कि ये चीज़ हमको चाहिए है। लेकिन एक चीज़, वो जो चीज़ के लिए हम लोग जिद कर रहे हैं, वो अगर हम लोगों को ग्रांट कर दिया जाए, वो अगर हम लोगों को दे दिया जाए, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकती है, उसकी जो रेपोकेशंस है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब उसके साथ साथ क्या क्या ख़राब चीज़ें आ सकती है, या इसकी मुझे एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं आ रही है, लाइक रेपोकेशंस मतलब उसकी परिणति क्या हो सकती है, वो चीज़ सिर्फ बाबा को दिखती है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है, जिस चीज़ की हम लोग मांग कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो चीज़ हम लोगों को या तो नहीं दी जाती है, या तो तभी के लिए उस चीज़ को टाल दी जाती है। So this was for the faith part. भरोसा मत छोड़िए. Do not lose your faith, because that is your that is your magic wand. वही है। अगर आप बाबा के डिवोटी हो और आपके पास श्रद्धा और सबूरी नहीं हुई, तो फिर आपके पास मैजिक किधर हुआ? वही तो है आपकी मैजिक वॉन्ड, हम सबकी मैजिक वॉन्ड। Okay, so the next thing, ignore. Talk less about your pains and hurts. Don't give them a place in your consciousness. Point number 2, आप बहुत ज़्यादा जो चीज़ आपको नहीं मिली है, जो चीज़ आपने खोया है ज़िंदगी में, उसी के बारे में आप ज़्यादा बात करते हैं। जो आपके पास्ट में चले गए हैं, प्लीज़ पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। बार बार बातों में उठा के लाना, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, मैंने तो ज़िंदगी में ये नहीं मुझे मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये आप प्लीज़ मत कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप
आपकी जो हर्ट्स है, पेन्स है, जो आपकी डिफीट्स है, यानी कि जो आपकी हार है, जो तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, इनके बारे में आप जितना ज़्यादा कॉन्शियस माइंड में उसके लिए बात करोगे, जितना ज़्यादा आप, भले आप सिंपैथी गैदर करने के लिए हो या फिर आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने के लिए हो, जिस भी वजह से आप इस बारे में बात करते हैं, आपको नहीं पता है कि आप उसी एनर्जी को, जिस एनर्जी ने आपको दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, हार दिया है, हानि पहुंचाई है, उसी एनर्जी को आप बार बार आपकी ज़िंदगी में खींच करके ला रहे हैं। मैंने पाइल 1 की रीडिंग करते हुए मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन की बात की थी। सो एफर्मेशन इज़ समथिंग जो हम लोग हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि सकारात्मक जो बातें रहती है, सकारात्मक जो चिंताएं रहती हैं, वो हम लोग डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, एक ही चीज़ को बार बार लिख के या एक ही चीज़ को बार बार बोल के, ताकि वो चीज़ हम लोग इजीली मैनिफेस्ट कर पाए। तो अगर आपको अफर्मेशन समझ में आती है और अगर आपको मैनिफेस्टेशन समझ में आती है कि एक चीज़ को बार बार लिखने से, बार बार कहने से हम लोग ये कम्युनिकेट करते, वो हमारी दिमाग में बैठती है और हमारे थॉट्स प्रोसेस के ज़रिए ये यूनिवर्स को कम्युनिकेट होती है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि जैसे सकारात्मक बातें, पॉजिटिव एफर्मेशंस जब आप करते हैं, जैसे कि वो कम्युनिकेट होती है हमारे थॉट्स के ज़रिए, क्योंकि वो बार बार कह के या बार बार लिख के हम लोग उसको हमारे थॉट्स में डालते हैं, हमारे माइंड में डालते हैं, और माइंड के ज़रिए, थॉट्स के ज़रिए वो यूनिवर्स को कम्युनिकेट होती है एंड वहाँ से वो मैनिफेस्टेड होके हमारे सामने रिजल्ट के बतौर हमारे सामने लाई जाती है। वी गेट इट एज अ रिजल्ट, राइट। उसी तरह से जब आप नकारात्मक बातें करते हैं, जब आप नेगेटिव अफर्मेशंस करते हैं, दिस इज ऑल्सो एन अफर्मेशन। जब जो चीज़ आप बार बार करते रहोगे, दैट विल act as an affirmation and that will get manifested and will be served back to you. So be very very careful. मत कीजिए। जो भी आपकी तकलीफ़ें, दुख है, वो कहते हुए वो कम नहीं होगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है कि दुख के बारे में बात करो तो दुख कम हो जाती है। बिल्कुल नहीं होती है, कभी भी नहीं होता। आपका हुआ है क्या? दुख के बारे में आप जितना ज़्यादा बात करते हो वो आपके दिमाग में उतना ही बैठता जाता है। सो बेटर उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा मैंने तकलीफ़ झेली थी, मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ हुई थी, जो भी है, जिस भी जेंडर को आप बिलोंग करते हो, जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करो एंड उसको जाने दो। उसके बारे में बार बार बात करना मतलब उसी एनर्जी को आप दूसरे रूप में आपकी ज़िंदगी में वापस लाने वाले हो। कीप दिस इन माइंड। एंड मिरेकल ये आपके विश्वास के साथ जुड़ जाती है। मिरेकल्स डू हैपन, लुक आउट फॉर द मिरेकल्स इन योर लाइफ। मिरेकल्स होते हैं, भरोसा रखिए। मिरेकल्स बिल्कुल होती है और आपके साथ जो भी आपकी जर्नी रही है, जो भी आपकी उम्र है आज के डेट में, इतने जो साल आपने निकाले हैं इस धरती के ऊपर, यानी कि इस धरती पे, तो बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में हुई है। हर रोज़ हमारे साथ मिरेकल्स होती है। पहला नंबर 2, बस हम लोगों को अपनी खुद की आंखों को खोल के रखना पड़ता है। अपनी आंखों को इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल आई दैट वी हैव, जो हमारी फिजिकल आई है, यानी कि जो चक्षु आप लोग को दिखते हैं, हम लोग को दिखते हैं एक दूसरे में, उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड्स आई, आई एम टॉकिंग अबाउट द इनर आई। जब मन की चक्षु को आप खोलोगे, जब मन की आंखों को आप खोलोगे, तो आपको सारे के सारे मिरेकल्स इजीली दिख जाएंगे। सोल जर्नी, यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक इट ऑल अलोन। आपकी जो सोल जर्नी है, जैसे कि मैंने पाइल 1 को रीड करते हुए कहा था, एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि हम लोग सभी लोग एक पर्पस लेके ही इस दुनिया में आते हैं। बहुत बार हम लोग पर्पस से जुड़ नहीं पाते हैं। हम लोग बस यहाँ की भोग विलास मोह माया में उलझ के रह जाते हैं और फिर जब टाइम आती है हम लोग निकल जाते हैं, हमारी पर्पस अधूरी रह जाती है। आप लोगों में से जिन लोगों को भी अपनी पर्पस पता है, जो लोग इतना फॉर्चुनेट है, जो अपने पर्पस से जुड़ पाए, अपने रूट से जुड़ पाए, तो आपके लिए मैसेज ये है कि ये जो सोल जर्नी है, आपको इस जर्नी में आपकी पर्पस बता दी जाएगी, आपकी पर्पस दिखा तो दी जाएगी, लेकिन चलना आपको खुद को ही है। आपके हाथ पकड़ के कोई नहीं चलने वाला है, लेकिन आपके प्रोटेक्टर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। अगर आप साई डिवोटी है तो आप ये मान के चलिए, जान के चलिए कि बाबा कभी भी हम लोगों को किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जब आप चलोगे, आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आप कोई आपका हाथ पकड़ के वहाँ तक लेके जाएगा। नहीं, वो रास्ता आपका है, ये आपकी जर्नी है।
आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दूसरे आपके साथ चलेंगे, क्योंकि जब आप आते हो आप अकेले आते हो, आप अकेले ही आए थे, आप किसी को नहीं लाए थे साथ में, और जब टाइम आएगी आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ये जो जर्नी है, यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आप जब ट्रेन से सफ़र करते हो आपको को पैसेंजर्स मिलते हैं, राइट, लेकिन जर्नी और डेस्टिनेशन तो आप ही का रहता है। भले ही डेस्टिनेशन बहुत लोगों का सेम हो, लेकिन आपकी जर्नी तो आप ही की रहती है। जो आप दोस्त बनाते हो जर्नी में, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, कुछ सिचुएशंस अच्छी कुछ सिचुएशंस बुरी, वो कम्प्लीटली आपकी रहती है। तो आपकी जर्नी रहती है उसी तरह जैसे आपकी फिजिकल जर्नी रहती है, वैसे ही ये आपकी सोल जर्नी है। सोल जर्नी कहाँ कनेक्ट करती है? आपकी स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करती है, आपकी स्पिरिचुअल साइड को कनेक्ट करती है। तो अगर आपने आपकी पर्पस ढूंढ ली है, अगर आप आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किए हैं, तो पकड़ के चलिए, मान के चलिए कि वो जर्नी आपको खुद ने ही तय करनी है। लेकिन हाँ, जिस भी जगह पे आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, बाबा हमेशा होंगे आपके साथ। रिपीटेशन इन लाइफ, दिस वंस अगेन कनेक्ट्स टू दैट फर्स्ट कार्ड जो आपको मैंने अभी पाइल नंबर 2 जो मैंने एक्सप्लेन किया है, कि जितना ज़्यादा आप पुरानी चीज़ों के बारे में बात करोगे, जितना ज़्यादा आप दुख तकलीफ सब चीज़ों के बारे में बात करोगे, उतना ही ज़्यादा उन चीज़ों को आप आपकी ज़िंदगी में वापस बुलाते रहोगे। सो रिपीटेशन इन लाइफ सेज द सेम थिंग, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम, सो इट्स बेटर यू लर्न फ्रॉम देम। रिपीटेशन आती ही क्यों है? क्योंकि हम लोग सीखते ही नहीं है ना। बार बार एक ही चीज़ हमारे सामने आती जाती है, एक ही चीज़ परोसी जाती है, और हम लोग कोसते जाते हैं, यार हम ही क्यों, भगवान सिर्फ मुझी से उनकी बैर है, भगवान सिर्फ मुझी को ऐसे बार एक ही चीज़ देते जाते हैं। लेकिन हम लोग ये पार्ट चुक जाते हैं कि करता धरता हम ही हैं उसके पीछे, हम ही उस चीज़ को बार बार बुला के लाते हैं। सो बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट टाइम when you talk about something and कौन सी चीज़ को आप आपकी थॉट्स दे रहे हैं, because your thoughts are your energies। बहुत सोच समझ के आपके माइंड में कोई भी थॉट को जगा दीजिएगा। कोई भी बात जब आप कर रहे हो, अवॉइड कीजिए नेगेटिव बातें, जितना हो सके अवॉइड कीजिए। जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो लोग पास्ट में ही जीते हैं, जो लोग इसकी भी निंदा करते हैं उसकी भी निंदा करते हैं, उन सब लोगों से दूर हो जाओ। चाहे वो कितना भी आपकी अपने हो, चाहे वो कितना भी आपसे जुड़े हुए हो, एक डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने हो सकते हैं, रिश्तों की गंदगी आपकी खुद की नहीं हो सकती। जिनकी गंदगी है उनके पास रहने दो, रिश्तों को अपनाओ, रिश्तों के साथ आती हुई जो गंदगियां हैं उनसे खुद को दूर कर लो। सो दैट वॉज ऑल फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 इतना ही था आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर पाए हैं तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू गिव मी अ थम्स अप। एक लाइक करने को हेजिटेट मत कीजिएगा प्लीज़। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू है, क्योंकि ये चैनल खुद ही न्यू है, और चैनल के बारे में बताते हुए मैं कह दूं कि ये चैनल मैंने बाबा को डेडिकेट किए हैं। साई साई बोल मेरी जो फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है वो भी साई साई बोल के नाम से ही है। और मेरी जो मेन अकाउंट है, मेन चैनल है, आप लोगों में से बहुत कोई मुझे जानते भी होंगे। अगर आप लोग मुझे मेरे मेन चैनल से फॉलो करते हुए यहाँ पे आए हैं, तो मेरी मेन चैनल जो है यूट्यूब में, उसका नाम है ज़ीनिया द सॉलिटरी विच, जहाँ पे मैं स्पिरिचुअलिटी, रिचुअल, स्पेल्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। और वहीं पे एक सेक्शन मैंने बाबा को डेडिकेट किए थे। करीब 6-8 महीने तक मैं लगातार बाबा की वीकली रीडिंग्स करती आई हूँ, बट इस बार मैंने ये चैनल कम्प्लीटली बाबा को ही डेडिकेट किए हैं, ताकि साई डिवोटीज़ सिर्फ और सिर्फ बाबा के चैनल में ही आ सके। क्योंकि मेरी जो चैनल है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जो हमेशा हर साई डिवोटी को रिलेट नहीं करते हैं, हर साई डिवोटी के साथ कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो मैं पूरी तरह से, मेरी मंशा ये है कि यहाँ पे जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो भी बाबा से रिलेटेड है, हालांकि सभी बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जो भी बच्चे बाबा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो लोग एक फैमिली की तरह बने, एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे के लिए अच्छी सोचे, अच्छी दुआएं रखे, और बाबा की मैसेजेस उन तक हमेशा पहुंचती रहे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ बिना झिझक के एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मतलब लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़ीनिया हर वीक आती रहूँगी बाबा की जो जनरल रीडिंग है वो लेकर के। सो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2, एंड याद रखिएगा जो भी मैसेजेस आपको आए हैं उस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए। ओम साई राम। हेलो पाइल नंबर 3, लेट मी शफल योर कार्ड्स।
Okay. So pile number 3. Pile number 3, first card. The Helper. Baba will help you in your career. क्या बात है. What a beginning. Okay, so the first card. Second card is a reverse card for pile number 3. एक बार रिवर्स कार्ड के बारे में बता दूं before talking about the message. Reverse card in Oracle means this particular message needs more focus, more attention. Reverse card Oracle में मतलब होता है कि ये जो मैसेज आप तक पहुंचाई जा रही है इसको ज़्यादा अटेंशन देनी है आपको, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करनी है. So let's find out what it is. Soul group. If a person from your soul group is trying to help you, take it. This is your card. इस बात पे, इस मैसेज पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है. I'll come to it. पहले हम लोग देख लेते हैं कार्ड्स क्या क्या बता रहे हैं. क्या बात है. वाओ. पाइल नंबर 3. टेलीपैथी. Baba can communicate with anyone, anytime, anywhere. Look for signs. Pile number 3. As of now, this is the best reading that I'm doing today. Okay. क्या बात है. So your fourth card says all is well. One of the ascended masters is guiding and protecting you. Card number 5. Once again, faith has come. Okay. Acha. Card number 5 says faith. Have faith, Shraddha above all else. Okay. अरे बाप रे. अच्छा. faith के बाद trust. So your sixth card says trust. Be patient even though you don't have the answer. Wait and trust. Interesting. Okay. तो पाइल नंबर 3, यहाँ पे भी बात है भरोसे की. बात है भरोसे की. आपको ऐसा लग रहा है योर फेथ इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप. आपकी भरोसा उस कगार पे आ चुकी है जहाँ पे वो डगमगा रही है और किसी भी वक्त भरोसा टूट सकती है. पाइल नंबर 3. और जो अगर ऐसा है सिचुएशन आपके साथ, और जो अगर ऐसा है आपके ख्यालात ऐसे कुछ चल रही है आपके दिमाग में, तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिएगा. बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज यही है कि भरोसा रखिए, यानी कि श्रद्धा रखिए. आप लोग देख सकते हैं, आप साइड, मैं मान के चलती हूँ आप साइड डिवोटी है इसीलिए आप मेरे चैनल पे हैं. आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये मेंशन्ड है श्रद्धा, राइट. देन अगेन इसके साथ साथ जो कार्ड आई है ट्रस्ट, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रद्धा एंड सबूरी, जो कि हम साई डिवोटीज के लिए मंत्र है. हम लोग कुछ और मंत्र तो नहीं जापते ना. जो लोग बाबा के डिवोटीज है वो लोग सिर्फ यही 2 मंत्र जापते हैं, श्रद्धा और सबूरी. जब दिमाग इधर उधर घूमते हैं तो हम लोग दिमाग को ही बोलते हैं नहीं श्रद्धा और सबूरी, और वही हमको आगे लेके चलती है. सो पाइल नंबर 3, श्रद्धा और सबूरी बिल्कुल मत खोइए. पेशेंस रखिए, जो कि सबूरी है. पेशेंस ज़रूर रखिए, श्रद्धा रखिए. आपकी श्रद्धा विफल नहीं जाने वाली है. आपने जितना भी प्यार बाबा से किए हैं, जितनी भी पूजा और सेवा आपने बाबा की है, वो व्यर्थ नहीं जाएगी. ये आप लिख के ले लीजिए. ये वीडियो रहेगी, आप कभी भी आके इसको वापस सुन सकते हैं. वो आपकी विफल
व्यर्थ विफल नहीं जाएगी, बस थोड़ी सी टाइम की बात है। द हेल्पर, बाबा विल हेल्प यू इन योर करियर। अगर आप जॉब से रिलेटेड, आप में से कोई भी अगर जॉब से रिलेटेड परेशान हैं, या फिर आप जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, जहां तक आप जाना चाहते हैं, वो अगर आप नहीं पहुंच पा रहे, उसके वजह से अगर आपको तकलीफ़ें हो रही है, आपको अगर चिंताएं आ रही है, इफ़ दैट इज़ व्हाट डूइंग यू अ कंसर्न, इफ समथिंग रिलेटेड टू योर करियर is doing you a concern, then please pile number 3, pile number 3, know that Baba will help you in your career. It's just a matter of time. सिर्फ समय की बात है। आप लोग बिल्कुल आस मत छोड़िएगा, भरोसा मत छोड़िएगा। बाबा आपकी जो करियर की जो भी आपकी इश्यूज़ है, बाबा ज़रूर हेल्प करेंगे आपके करियर में। एंड नॉट ओनली इन योर करियर, पाइल नंबर 3, जो भी इश्यूज़ है, ये तो स्पेसिफिकली मेंशन था इसीलिए मैंने कहा, जिनको भी करियर से रिलेटेड इश्यूज़ है, कोई भी और भी इशू अगर है जो करियर से भी अलग है, जुदा है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई हो, पाइल नंबर 3, हमेशा ये मान के चलिए, जान के चलिए, भरोसा रखिए कि बाबा हमेशा है आपके साथ। वो कभी भी आपको अकेले नहीं छोड़ने वाले हैं। तो प्लीज़ श्रद्धा पे कोई भी अड़चन मत आने दीजिए। आपकी श्रद्धा के वजह से आप बाबा के इतने नज़दीक हैं, उसमें थोड़ा सा भी अड़चन मत आने दीजिए। श्रद्धा रखिए, भरोसा रखिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सबूरी भी रखिए साथ में, क्योंकि श्रद्धा और सबूरी हमेशा एक साथ चलती है, दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। एक ही सिक्के की दोनों पहलुएं हैं, दोनों साइड्स हैं, दोनों चेहरे हैं, श्रद्धा और सबूरी। जब चलते हैं तो साथ में ही चलते हैं। तो प्लीज़ श्रद्धा और सबूरी को डगमगाने मत दीजिए। And most importantly, telepathy. Baba can communicate with anyone, anytime, anywhere. Look for signs. This card, telepathy. तो प्लीज़ ज़रा ओपन रहिएगा। अपनी जो फिज़िकल आइज़ है, यानी कि जो आपकी शारीरिक चक्षु है, उसके साथ साथ जो आपके मन की चक्षु है या आँखें हैं, open your mind's eye. Do not just base on your physical eye. Stay open, stay alert. थोड़ा रूटेड रहिए। बाबा किसी भी ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद के मन की आंखों को खोलना पड़ेगा, आपको ओपन होना पड़ेगा, आपको रेडी रहनी पड़ेगी उस मैसेजेस को रिसीव करने के लिए, उस मैसेजेस को डिकोड करने के लिए। किसी गाने के ज़रिए, रेडियो में किसी गाने के ज़रिए भी आप तक बाबा मैसेज पहुँचा सकते हैं, किसी पेज के ज़रिए। जैसे कि मैं भी मेरे इंस्टाग्राम में, अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम में साई साई बोल वाले पेज पर अगर फॉलो करते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेरे इंस्टाग्राम की पेज की जो हैंडल है, इंस्टा हैंडल भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। ऐसे मेरे पेज की जैसे सैकड़ों पेजेस है जिसके ज़रिए बाबा अपने डिवोटीज़ के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। उस ज़रिए भी आपको मैसेजेस मिल सकती है, किसी नंबर के ज़रिए भी आपको मैसेजेस मिल सकती है, किसी इंसान की बातों में से भी आपको वो मैसेज मिल सकती है। इसीलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बाबा कौन से रूप में, किस समय, क्या मैसेज दे के चले जाए, इसके लिए आपको खुद को रेडी रहना पड़ेगा। वरना आप बाद में बाबा को कोसोगे तो वो बाबा के लिए तो मतलब बाबा की कोई गलती नहीं रहेगी, क्योंकि बाबा ने तो आपको मैसेज दिया था, आप चुक गए, इसमें बाबा की क्या गलती है। तो इसीलिए खुद को रेडी रखिए, ताकि जब कभी भी बाबा के मैसेजेस आए आप उसको चुगे ना, आपसे वो चुगे ना। अच्छा, so the next card says all is well. One of the ascended masters is guiding and protecting you. So this means pile number 3, आप unnecessarily बहुत ज़्यादा stressed out हो रहे हैं। सब कुछ ठीक है, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है ना, इसीलिए मतलब होता क्या है ना, हम लोग जो चीज़ देखते हैं, like seeing is believing. We completely go with this phrase that seeing is believing, which should not be the fact, and which is not the fact, which is not the truth. It should be believe what you cannot see, क्योंकि जो चीज़ दिखती है वो तो दिखती ही है, उधर अलग से बिलीव करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। जो चीज़ नहीं दिखती है उन पे भरोसा करो, और जब भरोसा करने लगे तो चीज़ें दिखनी भी लग जाएगी। सो ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। जो रल्म आपको नहीं दिखता है, जो चीज़ें आपको नहीं दिखती है, जहाँ पे आपके लिए 24 घंटे कोई एक एसेंडेड मास्टर, यहाँ पे कुछ हमारे हिंदू रिलीजन से जुड़े हुए जो डेटीज़ हैं,
उनके बारे में दिए हुए हैं, मतलब उनके बारे में ही जिक्र किया है, क्योंकि हिंदू रिलीजन में जो रिलेटेड है उनके ही बारे में जिक्र किया जा सकता है यहाँ पे, सिंस इट्स रिलेटेड टू बाबा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो हिंदू गॉड्स है उन्हीं तक ये रिलेटेड है। आप अगर कोई दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आपकी भी जो असेंडेड मास्टर्स हैं, खास करके जस्ट एज बिकॉज वी आर ऑन बाबाज चैनल और हम सभी लोग बाबा के डिवोटी हैं, तो यहाँ पे मैं ये जो साइड में जो ओल्ड एजेड इंसान बैठे हुए हैं, जो भगवान बैठे हुए हैं, जो भी बोलो आप, इंसान बोलो भगवान बोलो जैसे भी बोलो, जो अपने बाबा बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये 24 घंटे आपके लिए काम किए ही जा रहे हैं। आपकी जो भी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है सबको प्रोसेस किए ही जा रहे हैं, आपके लिए रास्ता खोलते ही जा रहे हैं। सो प्लीज़ उसके इस चीज़ के लिए कम से कम आप उनको शुक्रिया कहिए और इस चीज़ को मान के चलिए कि आप अकेले नहीं हैं। जो भी चीज़ आपको इतनी परेशानी दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, या फिर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रहे हैं, उनको होल्ड पे रखिए और ये deep down inside somewhere, please know this, that everything is going to be fine very soon. बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। Okay, the last message is soul group. If a person from your soul group is trying to help you, take it. Soul group यानी कि soul, जब भी सोल चीज़ की जिक्र होती है तो इट एक्चुअली रिलेट्स टू द स्पिरिचुअल साइड, हमारी जो स्पिरिचुअल साइड है। अगर ऐसा कोई है, मान लीजिए किसी हीलर से आपने कंसल्ट किए हैं, या फिर किसी कार्ड रीडर से आप जुड़े हुए हैं, या फिर कोई विच है, जो अब फिर बता दूं मैं, विच मतलब कुछ भयंकर नहीं होता, मैं खुद एक विच हूँ, मैं एक सॉलिटरी विच हूँ। एनीवे, अगर आपको मेरे बारे में जाननी है तो मेरी दूसरी चैनल है और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स भी है, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर समडे। एनीवे, सो सोल ग्रुप में सोल साइड जो आती है, जो स्पिरिचुअलिटी को रिलेट करती है, तो अगर आप किसी हीलर से जुड़े हुए हैं, किसी गुरु से जुड़े हुए हैं, किसी विच से जुड़े हुए हैं, किसी कार्ड रीडर से जुड़े हुए हैं, या जो भी एक ऐसे इंसान से आप जुड़े हुए हैं जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में विलीन है, तो अगर वो आपकी मदद करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा जो जिनसे आप किसी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में मिले, या फिर आप लोग एक ही डेटी को मानते हैं, या फिर वो भी साइड डिवोटी है, और अगर कोई आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आप बिना किसी हेजिटेशन के उस मदद को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो आने वाले दिनों में आपकी उपकार में ही आएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर पायल नंबर 3। जाने से पहले एक बार हम लोग रिकैप करते हैं। भरोसे को डगमगाने नहीं देना है, श्रद्धा और सबूरी पे डटे रहना है, श्रद्धा सबूरी को डगमगाने नहीं देना है हम लोगों को। और जी हाँ, खुद को ओपन रखनी है। टेलीपैथी, बाबा किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी वक्त कुछ भी मैसेजेस पास ऑन कर सकते हैं, और अगर चूक गए तो बाबा की गलती नहीं रहेगी, राइट। और प्लीज़ जानिए कि बाबा 24 घंटे आपकी जो भी कर्म है, आपके कर्मास को प्रोसेस करने की बहुत तरीके से, पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उसके लिए उनको शुक्रिया अदा कीजिएगा। कंप्लेन मत कीजिएगा, शुक्रिया अदा कीजिएगा। और दिल ही दिल में, मन ही मन में जानिएगा कि जो भी आपको भी परेशानी हो रही है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। और जी हाँ, अगर आप काम को लेके बहुत चिंतित है, जो भी लोग यहाँ पे जॉब को लेकर या करियर को लेकर बहुत चिंतित है, नो दैट कि बाबा इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ इट। बहुत ही जल्द आपको आपकी वो रास्ता ज़रूर मिल जाएंगे। और जी हाँ, सोल ग्रुप वाली जो बात याद रखिएगा, अगर कोई मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो बेझिझक उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। सो पैल नंबर 3, इफ़ यू आर एबल टू रेजोनेट विद द मैसेजेस, अगर आप रेजोनेट कर पाए इस रीडिंग के साथ, तो प्लीज़ एक थम्स अप देना मत भूलिएगा, लाइक यानी कि लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और न्यू से बता दूं ऑन दैट नोट, ये चैनल खुद ही एक न्यू बॉर्न है। ये चैनल मैंने बाबा को डेडिकेट किए हुए हैं। आप लोगों में से शायद कोई लोग होंगे जो मुझे मेरी मेन जो चैनल है जीनिया द सॉलिटरी विच, मेरी मेन चैनल है, वहाँ से अगर फॉलो करते हुए आप लोग आए हैं, तब तो मैं पूरी भरोसा रख सकती हूँ कि आप लोग बिना लाइक किए, कमेंट किए, सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाओगे। बट जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो लोग मुझको मेरी पहली जो चैनल है यानी कि मेरी मेन जो चैनल है जीनिया द सॉलिटरी विच, वहाँ से अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए मैं बता दूँ, वो चैनल पे मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, जहाँ पे रिचुअल्स भी है, विचक्राफ्ट भी है, स्पिरिट्स, डेमन्स, सभी के बारे में मैं बात करती हूँ। और उसी में एक सेक्शन मैंने बाबा को डेडिकेट किया था, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट करीब 6 से 8 महीने तक मैंने लगातार वीकली रीडिंग किए हैं बाबा के लिए।
तो इस बार मैंने सोचा है कि एक पूरी चैनल बाबा को डेडिकेट करूँगी, साई साई बोल, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जो बाबा को डेडिकेट है उसी के नाम से है। क्योंकि मेरी जो मेन चैनल है वहाँ पे हमेशा हर चीज़ हर साई डिवोटी के लिए नहीं रहती है। जो लोग साई डिवोटी है, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ बाबा से जुड़े हुए हैं, मेरी मंशा ये है कि उनके लिए मैं एक ऐसा माहौल बनाऊं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग बाबा की ही बातें करेंगे, बाबा से जुड़ी हुई ही बातें करेंगे। सो इसीलिए साई साई बोल यहाँ आपके सामने है। और प्लीज़ बहुत सारा प्यार बरसाइएगा। जितना प्यार आप बाबा पे बरसाते हैं, जितना प्यार बाबा आप पे बरसाते हैं, उतना ही प्यार आप मेरे चैनल को भी बरसाइएगा, चैनल पे भी बरसाइएगा। और मैं जीनिया प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर वीक आ जाऊँगी बाबा की ये जनरल रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। तब तक के लिए आप लोग सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। ऑल द बेस्ट। ओम साई राम।